उमरकोट ऑनलाइन पाठचक्र संध्या अधिवेशन रे उपस्थित थिबा समस्त मातृ भिक्षु अपा भाई मानको मोर प्रणाम। वंदे मातरम। आमे भितरे प्रभुंकर से दिव्य ग्रंथ दिव्य जीवन रो एकादश परिच्छेद बा पारा सरी चैप्टर आलोचना करि सारलेनी। माँ और प्रभुंक कृपारू एई ग्रंथ मध्य प्रवेश करिवार प्रयास जारी रखिछे एवं तांको कृपारू याको बुझिबा और दैनंदिन जीवन रे प्रयोग करिवा पई आहुरी प्रयास करिबा। आजिर आलोच्य पारा हला 12th चैप्टर रो फर्स्ट पैराग्राफ। एई चैप्टर से सत चित आनंदर आनंद पाठ आनंद रूपम जद विभाति संशय परर आनंद रूप जद विभाति समाधानर प्रथम पैराग्राफ। सब चैप्टर आरंभ रे प्रभु उपनिषद एक श्लोक को उल्लेख करती। एही चैप्टर केनो उपनिषद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 6 को नहीं आरंभ करिसंती। वीरकिशोर भाई किछि दिन तले हमको ए संपर्क रे दीर्घ सूचना देइथिले। ए भितरे किछि दिन चली गलानी। आज आमे पुणी ताको आउ थरे टच करी आलोचना को आगो को नेबा। भाई भी कहिथिले मु भी पुणी थरे कहि दउची प्रभुंक लेखारु केनो उपनिषद रे ब्रह्म एवं आत्मा भली विषय उपरे आलोचना करा जायछि। ब्रह्म एवं आत्मा भली विषय उपरे आलोचना करा जायछि एवं प्रकृतिर शक्ति भावे देवता मानकर प्रतीकात्मक उपस्थापना संपर्क रे मध्य आलोचना करा जायछि। एही मंत्रटी केनो उपनिषद चतुर्थ खंडर बा 4th चैप्टर एवं मंत्र संख्या है 6। तद्धनम नाम तद्धनमित्यु पसीतव्यम सय एतदेवं वेदाभिहैनम सर्वाणि भूतानि संबाच्छन्ति। प्रभु तांकर भाष्य रे लिखिचंती the name of that is that delight. As that delight one should follow after it. He whoso knows that towards him verily all existences yearn. The name of that is that delight. T capital it that capital ro start karichhanti. As that delight unity that capital one should follow after it. He who knows that eti puni capital rakichanti towards him verily all existences yearn. आर ओडिया अनुवाद करने को चेष्टा करछि। यार नाम हेउछि सेही आनंद सेही डिलाइट। सेही आनंद को यहाँ पर अनुसरण करिवा उचित। जे एहां को जानती सेही आनंद को जे जानी पारंती उपलब्धि करि पारंती निश्चित भावे समस्त सत्ता बा व्यक्ति तांको प्रेम करिवा को तांको आराधना करिवा को व्याकुल हुवंती। तबे निरोध वर्णकर द लीजेंड्स इन द लाइफ डिवाइन बहिर 37 पेज रो एका लेखा को आमे नहीं आज चैप्टर को जीवा। ता पूर्व प्रभु धाड़ी करे एही उपनिषद वाक्य को बा मंत्र को बा श्लोक को लिखिचंती। The name of that is the delight. As the delight we must worship and seek after it.
ଚିତ୍ତ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେଖାର ଅନୁବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ନାମ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। The name of that is the delight. As the delight we must worship. ଆନନ୍ଦ ରୂପେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ହେବ। And seek after it. ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନିରଦ ବରଙ୍କର ଲେଖା ଓ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନକୁ ନେଇ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। Brahman, the reality in manifestation, reveals itself in its triple poise of Sat Chit Ananda. ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଉ କେତେଟା ବାକ୍ୟ ପଢିବା ନିରଦ ବରନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦି ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ, ଏ ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆଣି ସାରିଛେ। ଆଉ ଯିଏ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ଭାଇଙ୍କୁ, ଏ ସବୁତକ ବାକ୍ୟ ସେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆମର ଯାହା ଡାଉଟ ରହିଥିଲା ସିଏ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, Brahman, the reality in manifestation, reveals itself in its triple poise of Sat Chit Ananda. ସେହି ବ୍ରହ୍ମ, ସେହି absolute ବା ପରମ ବାସ୍ତବତା, ଏହାର ତ୍ରିମୁଖୀ ରୂପ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। It is a sheer existence, and the nature of that existence is consciousness, and the nature of consciousness existence is delight. ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା, ଏବଂ ସେହି ସତ୍ତାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଚେତନା, ଏବଂ ସେହି ସଚେତନ ସତ୍ତାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନଟି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା ଏବଂ ସେହି ସତ୍ତାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି, ନେଚର ହେଉଛି ଚେତନା। ସତ୍ତାରୁ କନସିୟସନେସ୍ ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ ପଢିଛେ ବି, ଏବଂ ସେହି ସଚେତନ ସତ୍ତାର ସେହି କନସିୟସ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ, ଡିଲାଇଟ୍। ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ବା ସେହି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଏ ସବୁ ରୂପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। Where there is existence, there is consciousness, and where there is consciousness, there is delight. ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଚେତନା ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଚେତନା ଅଛି ସେଇଠାରେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜିବଲ। ଆମେ ଏ ଯୋଉ ତ୍ରିମୁଖୀ ରୂପ କହୁଛେ, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦକର ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ରୂପ ସଂହାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, କୋଟି କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମେ କହିଲେ ଏହି ଜଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଡ଼ରୁ ପୁଣି ଜୀବନର ସଞ୍ଚାର କରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଏକ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ତ୍ରିମୁଖୀ ରୂପ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେପାରେଟ୍ ନୁହନ୍ତି। ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ଅବିଭାଜ୍ୟ। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ହେଉ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆନନ୍ଦ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେପାରେବଲ ନୁହଁ, ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ତାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେହି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ, ସେହି ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଡିଭିଜିବଲ ନୁହଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ it is free from everything, it is indivisible, immutable. ଛୋଟିଆ ପାରାଗ୍ରାଫଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢି ଦଉଛି। ବ୍ରହ୍ମ ବାସ୍ତବତା ବା
अब्सोल्यूट यार त्रिमुखी रूप सच्चित आनंद रे निजको प्रकाश बा अभिव्यक्त करती। यह होचंती एक संपूर्ण सत्ता एवं सही सत्तार स्वभाव होचंती चेतना एवं ही सचेतन सत्तार स्वभाव होचंती आनंद। जोठारे सत्ता रहिचंती सेठारे चेतना रहिचंती, जोठारे चेतना रहिचंती सेठारे आनंद रहिचंती। सच्चित आनंद होचंती एक एवं अविभाज्य। या जोठारे हेउ जेकोनोसी स्तर रे हेउ जेकोनोसी रूप रे हेउ एही आनंद अविच्छेद्य। Just as the consciousness may or may not be obvious, the delight may or may not be always palpable. जेपरि चेतना स्पष्ट होई पारे बा न होई पारे सेही भली आनंद सर्वदा स्पष्ट होई पारे किंबा होई न पारे मध्य। It may be hidden or deformed by imperfect expressions in life, but it is there all the same. या जीवन रे असंपूर्ण अभिव्यक्ति द्वारा लुचाई किंबा विकृत होई रही थाई पारे किंतु यह सबुठारे समान भाव रे थाए। In fact, everything is in existence because of this underlying delight. वास्तव रे ही अंतर्निहित आनंद कारणरू जो आनंद सबु भितरे अंतर्निहित रही सही कारणरू सबु किछि विद्यमान अछि। All contrary movements are only tentative and half-arrested efforts of this delight, which throws itself in varied movements, in thousand movements of the one. समस्त विपरीत गतिविधि केवल ही आनंदर अस्थायी एवं अधा रहिथिबा वा अधा गिरफ प्रयास जहाँ निजको विभिन्न गतिविधि रे एक एवं हजार हजार गतिविधि रे निक्षेप करे। Joy is pale reflection of this delight and pain a violent backwash. जॉय को आनंद बोली कहचे, आमे हर्ष बोली भी कहिचे। चित्त भाई एई जो जॉय डिलाइट एवं आ गोटे रहिछि हैप्पीनेस से तीनटा को आमे गला पैराग्राफ रे आलोचना करथिले। 11 चैप्टर रो लास्ट पैराग्राफ रे आलोचना करथिले। सेठारे सुंदर भाबे से लिखिचंती। सेठु आमे नै कि कहबा हर्ष हेउछि एही आनंदर फिका प्रतिफलन, एक लाइट रिफ्लेक्शन एवं जंत्रणा होची एक हिंसात्मक पश्चात प्रभाव बैकवाश। सेटा को बैकवाश कहिसंती। जेमिति बैक वाटर आमे जानिचे समुद्र रो बैक वाटर रे आमे न जानि पारि कि पानीटा आसीबो हमको जना पड़िबनी, किंतु जेतल पानीटा फेरी जिवो सुनामी समय रे देखिथिबे आपण पानी आसिला बेले जति डैमेज करे नाही, पानी जते बेले बैक वाटर चली जाए आ थरे पछको फेरी जाए पश्चात प्रभाव हुए सेते बेले बहुत क्षति करता है। सेमती जंत्रणाटा होची एक पश्चात प्रभाव। As long as there is ignorance, the delight of light cannot manifest itself in its purity and fullness. जे पर्यंत अज्ञानता अछि जीवनर आनंद यार शुद्धता एवं पूर्णता रे निजको प्रकाश करि परिबो नाही। The more our consciousness is pure, the nearer is our experience of this self-existent delight. आमर चेतना जेते अधिक शुद्ध हेबो ई आत्मनिर्भरशील आनंदर अनुभूति सेते निकटतर हेबो। The highest consciousness, the supreme being, is Anandamaya, constituted of Ananda, the delight. सर्वोच्च चेतना परम सत्ता हेउछंती आनंदमय, आनंद रे गठित आनंदमय। आनंद delight is the intrinsic nature of reality, whether it is manifest in form or unmanifest in formless state. बहुत important जिनिस भाई जोटा को हमको समय रजिस्टर कहितले म सेटा को एठी निया हेछि ताको आपण को आउथरे मन पके देली। आनंद हेउछि वास्तवतार अंतर्निहित प्रकृति, ताहा रूप रे प्रकाशित हेउ
किंबा रूपहीन अवस्था रे अप्रकट हेउ वास्तवतार अंतर्निहित प्रकृति माने स्वभाव कथा कहूछि मु स्वभाव ता रूप रे प्रकाशित हेउ किंबा रूपहीन अवस्था रे अप्रकट होई रहिताउ we must conceive of it as delight and adore it as delight आमे याको आनंद भावे ही ग्रहण करिबा उचित एवं याको आनंद भावे उपासना करिबा उचित it will reveal itself as delight whether in this world or beyond it. It will manifest itself as delight in every form and every movement in our life. एहा निजको आनंद रूपे ही प्रकाश करिवो ताही दुनिया रे हेउ किंबा एही दुनियार बाहरे हेउ एहा हम जीवनर प्रत्येक रूप एवं प्रत्येक गतिविधि रे आनंद भावरे निजको प्रकाश करिवो. The world will reveal itself as an ecstatic play of God's delight. He who realizes this truth of existence as manifestation of that it capital T Ramboichi, which is realizable by soul as innate delight, himself becomes an embodiment of that delight, and all creatures yearn towards him. यह आम जीवन प्रत्येक रूप और प्रत्येक गतिविधि रे आनंद भाव निजक प्रकाश करिवो विश्व निजको भगवान का आनंदर एक आनंदमय खेल भाव प्रकाश करिवो जे अस्तित्व रही सत्य को अनुभव करे जहाँ आत्मा द्वारा हृदयंगम आनंद भाव प्रकाश पाई थाए से निजे से आनंदर प्रतिमूर्ति हो जाए एवं समस्त प्राणी तांक प्रति उत्कंठित हुअन्ति. शेषरे the one way that makes life meaningful to us, justifies nature to God and God to nature, is to worship the Supreme as delight, for He is indeed everywhere as delight. एकमात्र उपाय जहाँ आम पई जीवन को अर्थपूर्ण करिथाए भगवान को पई प्रकृति को प्रकृति पई भगवान को यथार्थ करे ताहा हेउछि परम को आनंद भावरे पूजा करिवा कारण वास्तव रे से सर्वत्र आनंदमय. प्रभुंकर सेही वाक्य जो वाक्य रु ए चैप्टर आरंभ होइछि सेठी पुणी फेरी जिबा. The name of that is the delight, as the delight we must worship and seek after it. तार नाम हेउछि आनंद. आनंद रूपे ही तार उपासना करिवा को हेबो आनंद रूपे ही तांको खोजिबा को हेबो. इठी निरध्वरन सावित्री मंत्रमयी सावित्री रु चारोटी धाड़ी उल्लेख करछंती सेटाको पढ़िबा परे आजिर पारा भितर आमे प्रवेश करिबा. The world's senseless beauty mirrors God's delight. That rapture smile is secret everywhere. It flows in the wind's breath, in the tree's shape. Its hues, magnificence blooms in leaves and flowers. Book 2, Canto 4, 256 to 259 lines. पृथ्वीर बोधशून्य सौंदर्य भगवान का आनंद को करे प्रतिफलित. पृथ्वीर बोधशून्य सौंदर्य सेंसलेस ब्यूटी भगवान का आनंद को करे प्रतिफलित. से पुलकोच्छ्वासर स्मित हस संगोपन सर्वत्र पवनर निश्वास प्रश्वास रे चतुर प्राण रसरे से बहमान पत्र पुष्परे प्रस्फुटित तार रंगदीप्त विभव ज्वल्य. এই बैकग्राउंड परे आमे वर्तमान पारारे प्रवेश करिबा. फर्स्ट पैराग्राफ रो आमे पैराग्राफ रो लाइन बाय लाइन पढ़िबा एवं चित्त भाईकर ओडिया अनुवाद पढ़िबा और तापरे ताको टिके छोटिया जो प्रभुंकर बड़ बड़ लाइन ताको टिके छोटिया करिकि तार अनुवाद भी देखिबा. इंटरनेट सोर्स रो मु किछि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिकि ए प्रेजेंटेशन ता
କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ट्रांसलेशन रे हुए तो कोठी कोठी के भूल थाई पारे सेटा को आपण माने मार्जित करिवे। In this conception of an inalienable underlying delight of existence, of which all outward or surface sensations are a positive, negative, or neutral play, waves and foamings of that infinite deep, we arrive at the true solution of the problem we are examining. चित्तवाई का अनुवाद को पढ़ुछि। एही विश्वर मर्मरे एकांत अविच्छेद्य भावरे सत्तार आनंदर एक महासमुद्र परिव्याप्त रहिछि। एही विश्वर मर्मरे एकांत अविच्छेद्य भावरे इनएलिनेबल आउ इनसेपरेबल अविच्छेद्य भावरे सत्तार आनंदर एक महासमुद्र परिव्याप्त रहिछि। बाहरे बा उपरि भागरे सरफेस सेंसेशन से कहते उपरि भागरे बा बाहरे उद्वेलित होई उठुथिबा चेतना स्पंदन गुड़िक हेउछि ताहारी भावात्मक पॉजिटिव, अभावात्मक नेगेटिव किंबा भावाभाव निरपेक्ष बा न्यूट्रल लीला और क्रीड़ा मात्र सेई गभीर पारावारर तरंग विक्षोभ मात्र। एहीपरि एक कल्पना द्वारा ही आमे आमर आलोचित समस्याटीर एक यथार्थ समाधान पाइजिबा। प्रभु ए लाइन को एज कंटिन्यूएशन फ्रॉम 11 चैप्टर नैचती आमे ताको टिके छोटो करी कि लाइन गुडा को आलोचना करिवा। ऑल आवर सरफेस सेंसेशंस आर पॉजिटिव। आमर समस्त पृष्ठ संवेदन आमर जो जति सब बाह्य बाहर जो सेंसेशन होची संवेदन गुड़िक होची से गुड़िक हला अस्तित्वर अंतर्निहित आनंदर एक सकारात्मक जोटा को आमे कहूचे भावात्मक, नकारात्मक बा अभावात्मक किंबा भावाभाव निरपेक्ष बा निरपेक्ष खेल। They are like waves and foamings of infinite deep ocean, which is the delight of existence. हमें delight of existence ये जो स्वरूपानंद को यदि हमें महासमुद्र रूपे नेबा ओ महासमुद्र फेनिल जो डीप ओशन जो ऊपर जो ढेउ रोची आउ जो फेण रोची ताहा सहित तुलना करिबा सेठी मु वाक्यटा पूरा पढ़ी दउची। से असीम गभीर समुद्रर तरंग और फेण भली जहा हेउची अस्तित्वर आनंद से जो फेण और वेव गुड़ाक से डीप सी रो एक्चुअली जो एक्सटर्नल सेंसेशंस। The true solution to the problem of pain and evil lies in this conception of delight of existence. जंत्रणा एवं ये जो एविल रही एविल रो समस्यार प्रकृत समाधान हेउची अस्तित्वर आनंदर सत्तांकर आनंदर यही धारणा। आसंतु द्वितीय वाक्य को जीवा। The self of things in an infinite, indivisible existence, the essential nature or power is an imperishable force of self-conscious being. And of that self-consciousness, the essential nature of knowledge of itself is again an infinite, inalienable delight of being. एही अनंत और अविभाज्य सद्वस्तु ही विश्वमय सकल वस्तुर आत्मस्वरूप। एही सद्वस्तुर स्वरूप भावरे एही सद्वस्तुर स्वरूप भावरे आत्मचेतन सत्तार एक अनंत और अविनश्वर शक्ति
निहित होई रहिछि एवं सेही चेतनार ओ रूप स्वभाव ओ आत्मज्ञान रूपे एक अनंत और अविच्छेद्य स्वरूपानंद विद्यमान रहिछन्ति। याको टिके छोट छोट करिके पढ़िबा वाक्य we come across finite forms in the world। आमे दुनिया रे एही विश्व रे सीमित रूप गुड़िक देखा पाउछे। ससीम केते निर्दिष्ट रूप गुड़िक एक आमे केते गुड़िए रूप ही पाउछे। इनफाइनाइट नुह, रूप असीम नुह। Behind these finite forms there is self of things which is an infinite and indivisible existence। किंतु ये जो निर्दिष्ट केते रूप गुड़िक देखा पाउछे ए ससीम बा सीमित रूप गुड़िक पछरे आमे देखुछे एक अविच्छेद्य असीम आत्मा। Behind these forms there is self of things which is infinite and indivisible existence। सेही अविच्छेद्य असीम आत्मा ये सबरो पछरे रहिछन्ति। The essential nature or power of that existence is an infinite and imperishable force of self-conscious being। सेही अस्तित्वर मौलिक प्रकृति किंबा शक्ति हेउची आत्म सचेतन सत्तार एक असीम और अक्षय शक्ति। imperishable force, जो फोर्स की जो शक्ति नष्ट हो जीवार नहीं, अक्षय से सबुबले इक्वल रहता है। The essential nature or knowledge of this self-conscious being is an infinite, inseparable delight of being। ए आत्म सचेतन सत्तार मौलिक प्रकृति किंबा ज्ञान होउछि स्वरूपानंदंकर डिलाइट ऑफ बीइंग कर एक असीम स्वरूपानंद। ताहा होउछि स्वरूपानंद डिलाइट ऑफ बीइंग कर एक असीमता। पुणी वाक्यटा पुणी ए वाक्यटा को पूरा पूरी ओडियाटा पढ़े देउछि जोटा आपन को कंटिन्यूटी मिलिबो। आमे दुनिया रे सीमित रूप गुड़िक देखा पाई बा एही ससीम रूप गुड़िक पछरे एक अविच्छेद्य असीम आत्मा रहिछन्ति। सेही अस्तित्वर मौलिक प्रकृति किंबा शक्ति हेउछन्ति आत्म सचेतन सत्तार एक असीम एवं अक्षय शक्ति, इम्पेरिसेबल फोर्स। एही आत्म सचेतन सत्तार मौलिक प्रकृति किंबा ज्ञान हेउछि एक असीम स्वरूपानंद, डिलाइट ऑफ बीइंग। तो समय हे आसलानी आमे आ गोटे लाइन अति बेसी रे जाई परिबा। प्रभु लिखुचंती इन फॉर्मलेसनेस and in all forms, in the eternal awareness of infinite and indivisible being, and in the multiform appearances of finite divisions, this self-existence preserves perpetually its self-delight। इति प्रभु कहउछन्ति अरूपरे तथा सकल रूपरे असीम और अविच्छेद्य सत्तार शाश्वत चेतना भितरे तथा ससीम विभाज्यतार बहुरूपायित प्रतिभासरे एही स्वयंभू सत्ता अपनार स्वरूपानंद को सदा संरक्षित करी रखिछन्ति। आको टिके भांगी की पढ़ देबा। The eternal being assumes the status of formlessness and in manifestation assumes forms। हमें जानिछे सेही परम से फॉर्मलेसनेस हे पारंती बा फॉर्म सब क्रिएट करि पारंती। हमें जानिछे शाश्वत सत्ता अरूपरे बा निराकारतार स्थिति ग्रहण करि पारंती एवं अभिव्यक्तिर रूप मध्य धारण करि पारंती। Its status is infinite and indivisible। यार स्थिति असीम
एवं अविभाज्य. At the same time, it assumes multiform appearances of finite division. एथि सहित यह सीमित विभाजनर बहुमुखी रूप धारण करे. एटा भी आमे आलोचना करथिले जो सीमित विभाजन बारंबार डिविजन हला परे आमे बहु रूपर सृष्टि होइथाय. बहु रूप गोटे पर्टिकुलर डिविजन रे गोटे प्रकार रूप होइथाय पारे. गोटे प्रकार स्पंदन रो गोटे प्रकार रूप गठन होइथाय पारे. एई बळी भाबरे बहुधा विभाज्य होई गले विभाजन हेले बहुमुखी रूपर सृष्टि होइथाय. It assumes multiform appearances of finite division. In all these statuses, the self-existence preserves its self-delight without break. এই সমস্ত স্থিতিরে আত্ম অস্তিত্ব বিনা বিরামরে বিনা রেষ্টরে নিজর আত্মানন্দକୁ সংরক্ষিত ରଖିଥାନ୍ତି. ଆଜି ଏତିକି ରଖିବା. ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ ପାରାଟା ଟିକେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି. ଗୁଲୁ ଭାଇ ବି ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଚାପ୍ଟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ପୁନରାଲୋଚନା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କର ଶେଷ କନକ୍ଲୁଜିଭ ଡିସ୍କସନ ଯେତେବେଳେ ହବ ଶ୍ରୀପତି ଭାଇଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଗୁଡାକ ବୋଧଗମ୍ୟ ହବ. ମୁଁ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆଉଥରେ ରିପିଟ କରିବି. ଆମେ ଏଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ 2-4 ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେଖାକୁ ପଢିକି ଯଦି ଆସିବା ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଉଭୟ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବୁଝିବାରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ. ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି. ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ବା ଆନନ୍ଦ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସବୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠି ସମାନ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାରଣରୁ, କଣ ସେ କାରଣ? ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି. ହର୍ଷ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦି ଏହି ଆନନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ. ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ. ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଏହାର ନିଜର ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ. ଆମେ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୁଏତ ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ହେଇଥାଏ. ଆମର ଚେତନା ଯେତେ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସେତେ ନିକଟତର ହେବ. ଯେହେତୁ ପରମ ସତ୍ତା ଆନନ୍ଦମୟ, ଆନନ୍ଦରେ ଗଠିତ, ତେଣୁ ଏହା ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ରୂପେ ଦୁନିଆରେ ଓ ଦୁନିଆ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ. ବିଶ୍ୱ ନିଜକୁ ପରମ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ଖେଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ. ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା. ତା ପୂର୍ବରୁ କାଲି ଆମେ 3ଟି ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ. ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମର 9ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି, 9ଟି ବାକ୍ୟ ରହିଛି. ଆମେ 3ଟି ବାକ୍ୟ କାଲି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି. ତାପରେ ଆମେ 4ର୍ଥ ଲାଇନକୁ ଯାଇକି ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା. ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଏକାନ୍ତ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ସତ୍ତାର ଆନନ୍ଦର ଏକ ମହାସମୁଦ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି. ଆମର ବାହାରେ ବା ଉପରି ଭାଗରେ ବା ପୃଷ୍ଠ ସମ୍ବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଭାବାତ୍ମକ, ଅଭାବାତ୍ମକ ବା ଭାବାଭାବ ନିରପେକ୍ଷ ଖେଳ. ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗର ଫେଣ ଭଳି, ଯାହା ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ. ମନ୍ଦ
ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆନନ୍ଦର ଧାରଣା। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦି ମଧ୍ୟ ସେହି ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଥିବା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ସତ୍ତା ତାକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦିର ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ସେ ହିଁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ସେଇଠି ତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଜି ଜଗତ ଭାଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପଠେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କେହି ଯଦି ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ ପଢିଥିବେ ନହେଲେ ବି ସାଧାରଣ ଆମର ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିପ୍ ସମୁଦ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରର ତଳ ଅଂଶ ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ଉପରେ ତାର ଢେଉ, ଉପରେ ତାର ଫେଣ, ଉପରେ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ସେ ଏହାକୁ ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରେଟିଭ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ରିଜିଅନ, ଯୋଉ ଶାନ୍ତ ଗଭୀର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ବା ସରଫେସଟା ଆନ୍ଦୋଳିତ ରହିଥାଏ, ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶାନ୍ତ ଗଭୀର ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ପୋର୍ସନଟା ହଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡିପ୍ ସି ହଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରକାଶ, ଯୋଉଠି କି କୌଣସି ସ୍ପନ୍ଦନ ନଥାଏ, କୌଣସି ଗତି ନଥାଏ, ସେଇଠି ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଥାଏ, ସେଇଠି ସରଫେସ ୱେଭ୍ସ ନଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ୱେଭ୍ ଗୁଡାକ କେବଳ ସରଫେସରେ ଆସେ। ସମୁଦ୍ରର ଉପରି ଭାଗରେ ଆମେ ତରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ସେଇ ତରଙ୍ଗ, ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ତରଙ୍ଗ ବା ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ କହୁଛେ, ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ କି ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି, ସେଇଭଳି ସରଫେସ ରେ ୱେଭ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷର ତିଆରି କରିଥାଏ। କି ସୁନ୍ଦର କମ୍ପାରିଜନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି କେତେ ଭାଇବ୍ରେସନ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ପଜିଟିଭ ହେଇପାରେ। ଯୋଉ ଆମେ ତିନିଟା କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ଭାବାତ୍ମକ, ଅଭାବାତ୍ମକ, ନେଗେଟିଭ ଦୁଇଟା ପୋଲରେ ରହିଥାଏ, ଆଉ ମଝି ଆଡକୁ ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି। ଯୋଉ ତରଙ୍ଗର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିକୁ ନେଇକି ଯିଏ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଲା ସିଏ ଭାବାତ୍ମକ ହୁଏ, ଯିଏ କମ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଲା ସିଏ ଅଭାବାତ୍ମକ ହୁଏ, ଆଉ ମଝି ମଝିଆ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହନ୍ତି ବା ଭାବ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ନୁହଁ, ମଝିର ସ୍ଥିତି। ଆଉ ଯୋଉ ଫେଣ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଫୋମିଂ ହଉଛି, ସେଟା ସବୁଠୁ ଅସ୍ଥିର। ସେଟା ଫେଣ ଗୁଡାକୁ ଯଦି ଆପଣ ହାତରେ ଧରିକି କେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇଥିବେ ଯେବେ ସମୁଦ୍ରକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେଣ ଟିକେ ହାତରେ ଧରିଥିବେ। ସେ ଫେଣ କେତେ ଗୁଡେ ବବୁଲର ସମଷ୍ଟି ଯୋଉଗୁଡାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳେଇ ଯାଉଥିବ। ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ବି ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଇଭେନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଗରୁ ବିଲୀନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି କେତେ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କେତେ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କେତେ ଜିନିଷ ଚାଲିଯାଏ, କେତେ ଜିନିଷ ରହେ, ଆଉ ସବୁ ତକ ଷ୍ଟେବୁଲ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଯେତିକି ସରଫେସରେ ରହନ୍ତି ସେଗୁଡାକ, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏ ଯୋଉ ଫୋମିଂ ପାର୍ଟଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଅନଷ୍ଟେବଲ। ଆଉ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ପଢିଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଦୁଇ ପୋଲରେ ରହିକି ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଚାପ୍ଟରର ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା ଭଲରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡିକୁ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହାକୁ
हृदयंगम करिपरिबा। तेबे प्रभु ये जो प्रथम वाक्य जो कथा सब देइचंती ता सहित ये जो समुद्र सहित समुद्रर मूवमेंट सहित अति सुंदर कल्पना मध्य कंपैरिजन मध्य करचंती। परवर्ती वाक्य रे कहिचंती प्रभु तेणु जहा हेउछि एही दुख जंत्रणा मंद आदिर सृष्टिर कारण सेथिरे ही समाधान रहिछि। एही अनंत अविभाज्य सद्वस्तु जाको प्रभु लिखिचंती इनफाइनाइट इनडिविजिबल एक्जिस्टेंस विश्वमय सकल वस्तुर आत्मस्वरूप। एही एक्जिस्टेंस रो अस्तित्वर मौलिक स्वभाव वा शक्ति हेउछि आत्म सचेतना सत्तार एक असीम और अक्षय शक्ति। असीम और अक्षय शक्ति कहउचंती जो शक्तिर कौन सी क्षय हेब नाही। काली एटा को हमें मो भी एम्फेटिकली कहितली आज भी से कथा कहउची आत्म सचेतन सत्तार एक असीम इनफाइनाइट और अक्षय शक्ति जो शक्तिर क्षय हेब नाही। एही आत्म सचेतन सत्तार मौलिक प्रकृति किंबा ज्ञान होछि एक असीम अविच्छेद्य स्वरूपानंद डिलाइट ऑफ बीइंग। स्वरूपानंद डिलाइट ऑफ बीइंग और उपरे तथा सकल रूपरे असीम और अविच्छेद्य सत्तार शाश्वत चेतना भितरे तथा ससीम विभाज्यतार बहु रूपायित प्रतिभासरे एही स्वयंभू सत्ता आपणार स्वरूपानंद को सदा संरक्षित करी रखिचंती। देखंतु केड़े सुंदर इंपोर्टेंट जिनसटे बहुत सुंदर करी लिखाई थी। अरूप मध्यरे भी से ही असीम अविच्छेद्य सत्ता रहिचंती। रूपरे मध्य रहिचंती सकल रूपरे सबु रूपरे मध्य रहिचंती। चेतना भितरे रहिचंती ससीम विभाज्यतार बहु रूपायित प्रतिभासरे जेते सबु प्रतिभास रहिछि गोटे फाइनाइट डिविजन द्वारा जेते सबु प्रतिभास सृष्टि होइछि आउ एई जो स्वयंभू सत्ता जेतिकी सृष्टि करिसंती आपणार स्वरूपानंद को सदा संरक्षित रखिचंती। से केबे भी परिवर्तन होनाती इम्यूटेबल केबे भी से सब बेले स्वाधीन रहिचंती। एई तीनोटी वाक्य खाली आमे आलोचना को नहीं सारिछे। आसंतु आउ बाकी जो 6टी वाक्य अछि आमे आलोचना करिबा। प्रथम वाक्य होछि as in the apparent inconscience of matter M capital as in the apparent inconscience of matter our soul growing out of its bondage to its own superficial habit and particular mode of self-conscious existence discovers that infinite conscious force C capital F capital that infinite conscious force constant immobile brooding so in the apparent non-sensation of matter M capital it comes to discover and attune itself to an infinite conscious delight D capital imperturbable ecstatic all embracing। देखंतु आमे जते बेले मैटर कहूचे मैटर को जड़ बा पदार्थ बोली कहूचे जोठी जीवन नाही इनएनिमेट जिए ताकू भी प्रभु एठी कैपिटल रे लिखिचंती तार अर्थ होची ता मध्यरे मध्य सेही परमंकर अंश रहिची से भी सेथिरे भी सेही आत्मा रहिचंती। सेही भली भाबरे आउ गोटे जगह सेठी से कॉन्शियस डिलाइट बोली कहिचंती डिलाइट को भी कैपिटल लिखिचंती। सेही आनंद आगरु गोटे स्टेटमेंट मु कहितली जो जोठी सत्ता रहिचंती सेठी चेतना रहिची जोठी चेतना रहिची सेठी आनंद रहिची एवं सेही सत्ता आनंदर परिप्रकाश सेही सत्तांकठू तेणु से डिलाइट रे भी एठी हमर
कैपिटल प्रभु यूज करिसंती। चित्त भाई का अनुवादटा टिके पढ़देबा। प्रिय अज्ञानमय संस्कार बंधन और विशिष्ट स्व अनुभव रीतिर पाशरु मुक्त हुई आमर आत्मा जेपरी अचेतन बोली प्रतीत होतिबा जड़ मध्यरे मध्य ताहाकु आविष्ट करी रहितिबा सेही अनंत अचल और परिवर्तन रहित चित शक्तिर आविष्कार करिबाकु समर्थ हुए। आमर आत्मा जहा अचेतन बोली प्रतीत होउछि, जहा अज्ञानमय संस्कार बंधन और विशिष्ट निज अनुभव रीतिर पाशरु मुक्त होइकरी जदि आमे आत्मा जेमिति आमर आत्मा अचेतन बोली जोटा जना पड़ुछि देखा जाउछि सेही जड़ भितरे मध्य आमे सेही अनंत को अचल को और परिवर्तन रहित चित शक्ति को आविष्कार करि पारुछे। जेहेतु से सेठी रहिचंती ठीक सेही परी स्पंदनहीन बोली प्रतीत हेउतिबा सेही जड़ भितरे से एक अनंत और सचेतन आनंदर उल्लास सर्वगत और प्रशांत भावे विद्यमान रहितिबार मध्य आविष्कार करिथाय। दुईटा जिनस भितरे से सुंदर कंपैरिजन देइछंती। जेमिति अचेतन बोली जना पड़ुथिबा जड़ भितरे सेही सत्ता रहिचंती ठीक सेही परी स्पंदनहीन कौनसी भाइब्रेशन नथिबा कौनसी मूवमेंट नथिबा भली जे जना पड़ुचंती तांको मध्यरे मध्य एक अनंत और सचेतन आनंदर उल्लास सर्वगत और प्रशांत भावे रहिथिबार मध्य आविष्कार करिथांती एवं ताहारी ताल और छंद अनुसार अपना को परिचालित करिथांती। बहुत सुंदर प्रभु ये डिस्क्राइब करिसंती। आमे जेतेबेले आर पुनः आलोचना सुनिबा एवं शेषरे जिस्ट सुनिबा सेतेबेले आहुरी क्लियर हेबा आ आ भीतर रहितिबा आनंदटा को आमे भी प्रभुंकर लेखार आनंदटा को भी आमे उपलब्धि करि परिबा। तेबे भाबुची आर आउट के सिंप्लिफिकेशन देखिबा। Our soul is submerged in an apparent inconscience of matter। जे आत्मा सब बळे सबमर्ज माने बुडी रहिछि कोठी apparent inconscience of matter जड़र निश्चेतना भितरे आत्मा सब बळे बुडीकी रहिछि। It is in bondage to its own superficial habit and a particular mode of self-conscious existence। यह कहा सहित जोड़ी हेकि रहिछि, एही आत्मा कहा सहित जोड़ी हेकि रहिछि टू इट्स ओन सुपरफिशियल हैबिट। आमे देखुचे सच्चिदानंद जलर से समुद्र जलर गभीर रे प्रोफाउंड जो निश्चल अवस्था रे रहिछंती किंतु तार ऊपर भाग जेमिति स्पंदन रहिछि, ऊपर भाव रे मूवमेंट रहिछि, ऊपर वेव रहिछि, सेही भली भाव रे निश्चल हेकि रहिछंती जे आ तांकर सुपरफिशियल जोटा बाहरे जहा रही से जो सुपरफिशियल हैबिट आउ गोटे निर्दिष्ट सेल्फ कॉन्शियस एक्जिस्टेंट कर गोटे निर्दिष्ट मोड रे सी आवृत होइकिरी ता सहित एकाठी हेकि जोड़ी हेकि रहिछंती। यह निजर बाह्य अभ्यास यह माने से आत्मा एवं आत्म सचेतन अस्तित्वर एक निर्दिष्ट धारा सहित बंधन रे बांधी हुई रहिछंती। निजको बंधन एवं अचेतनातर मुक्त करी यह आविष्कार करे जे चेतना शक्ति जहा स्थिर अचल एवं प्रत्याहृत। एटी से कहचंती फ्रीइंग इटसेल्फ फ्रॉम दिस बॉन्डेज एंड इनकॉन्साइंस। एही बंधनरु एवं अचेतनतार मुक्त करी से कौन आविष्कार करि परिबे? से आविष्कार करिवे जे चेतना शक्ति स्थिर अचल एवं विथड्रॉन। से कहउचंती इट डिस्कवर्स दैट कॉन्शियस फोर्स व्हिच इज कांस्टेंट जोटा स्थिर इमोबाइल जोटा एपट सेपट हुए नहीं अचल चलमान नुह एंड विथड्रॉन से निजको प्रत्याहृत करी रखिछंती।
As it discovers this conscious force, so it discovers the delight in apparent non-sensation of matter. जेहेतु यह ही चेतना शक्ति बा चित शक्ति को आविष्कार करे तेणु यह पदार्थर स्पष्ट अणसंवेदनर आनंद आविष्कार करे. इटी मैटर प्रभु कैपिटल रे लिखिछंती, दिस डिलाइट इज कॉन्शियस, इनफाइनाइट, इनपर्टर्बेबल. तार अर्थ होची इट कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड, जोटा को डिस्टर्ब करा जाई परिबो नाही. सेही डिलाइट इज, सेही आनंद होचंती कॉन्शियस, सचेतन, असीम एवं जहा को हमें डिस्टर्ब करि परिबा नाही, एपट सेपट करि परिबा नाही. एक्सटाटिक, ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस जोटा को हमें उल्लास कहूचे, एंड ऑल एम्ब्रेसिंग एवं ताहा सर्वगत. यही आनंद हेउछि सचेतन, असीम, अपरिवर्तनीय, जहा को हमें विचलित करि परिबा नाही, डिस्टर्ब करि परिबा नाही. आनंदमय जोटा कि होची अप्रतिरोध्य सुख बा उल्लास एवं सर्वगत. वर्तमान हमें फिफ्थ सेंटेंस को जीवा. दिस डिलाइट इज इट्स ओन डिलाइट. दिस सेल्फ इज इट्स ओन सेल्फ इन ऑल. But to our ordinary view of self and things which awakes and moves only upon surfaces, it remains hidden, profound, subconscious. प्रभुंकर अनुवाद रे इतवाई लिखचंती, एही आनंद यार अपनार आनंद. दिस डिलाइट इज इट्स ओन डिलाइट. जो आनंद हमें देखुचे से आनंद कहार आनंद, से सत्तांकर आनंद. यही आत्मा, दिस सेल्फ इज इट्स ओन सेल्फ इन ऑल. यही आत्मा सबुरी भितरे रहिथिबा यार अपनार आत्मा. बट टू आवर ऑर्डिनरी व्यू, किंतु हमर नित्य नैमितिक साधारण दृष्टिटी केवल यार which awakes and moves only upon surfaces, से केवल यार उपरी भाग रे ही जागृत हुए. देखो सरफेस रे जेतेबेला गोटे जिनस जागृत होची आ विचरण करूची, मूव करूची, सेठी सबले मूवमेंट देखिबो. आ प्रोफाउंडिटी भितरे आत्मा को पाइबा, सरफेस रे आत्मार मूवमेंट को पाइबा. बा सच्चिदानंद को जल्दी भी देखिबा, हमें सच्चिदानंद से प्रोफाउंडिटी भितरे रहंती, से निश्चलता भितरे, समुद्रर गभीरता भितरे रहंती एवं केवल स्पंदन गुड़िक सरफेस रे रहे. सेमिति इठी ओचे आत्मा सबुरी भितरे रहिथिबा यार अपनार आत्मा, सेही सत्तांकर आत्मा, सेही सत्तांकर अंश, सेही सत्ता ही सबु भितरे रहिचंती. मात्र आत्मा ओ वस्तु संबंध रे, आत्मा ओ जड़ वस्तु संबंध रे हमर जो साधारण दृष्टिटी रहिची ता केवल तार सरफेस रु जागृत हुए आ विचरण करथाए. तेणु जेहेतु हमर जो दृष्टिटा सरफेस रे रहिची, सेही दृष्टि लगी एही स्वरूपानंद केवल गुप्त, अबोध्य एवं अवचेतन रूपे ही रही जाए. जेहेतु आमे केवल बाह्य अंशटी को देखि पारुचे, आमे बाह्य पोर्शन उपरे ही कंसंट्रेट करूचे, तेबे सेठी आमे देखुचे सेही स्वरूपानंद हिडन रही जाती, गुप्त रही जाती, अबोध्य रही जाती, अवचेतन रूपे ही रही जाती. भावुची एटा बोधगम्य होइथिबो. तापरे आसीबा हमें षष्ठ वाक्य को. एंड एज इट इज विदिन ऑल फॉर्म्स, so it is within all experiences, whether painful, pleasant or neutral. चितवाई को अनुवाद रे देखिबा, as it is within all forms, एई स्वरूपानंद जेपरी रूपर जावतीय आधार मध्य विद्यमान रहिचंती, जेते फॉर्म्स अछि सबुथिरे स्वरूपानंदकर उपस्थिति रहिछि. So it is within all experiences,
सबु अनुभूति भितरे की अनुभूति सुख अनुभूति दुख अनुभूति सुख दुख निरपेक्ष अनुभूति ए तीन प्रकार अनुभूति भितरे मध्य से सही स्वरूपानंद विद्यमान रही। सप्तम वाक्य को आसीबा दे आर टू हिडन profound subconscious it is that which enables and compels things to remain in existence। अनुभूति भितरे मध्य गुप्त एहा गुप्त अबोध्य ओ अवचेतन मध्य रे रहिछि ओ आपनार सत्तारे अवस्थित रहिबा पई प्रत्येक पदार्थ को समर्थन आउ समर्थ करूछि आउ बाध्य करूछि। आपनार सत्तारे रहिबा पई देखो एटा बहुत इंपोर्टेंट कथा लिखिचंती दे आर टू हिडन प्रोफाउंड सबकॉन्शियस गुप्त अबोध्य ओ अवचेतन मध्य रे रहिचंती इट इज दैट व्हिच एनेबल्स किंतु ए आपनार सत्तारे अवस्थित रहिबा पई प्रत्येक को समर्थ करूचंती एनेबल करूचंती। जदि एनेबल न करिवे आमे किछि कथा भी जानि परिबानी किछि भी प्रगति करि परिबानी सेही निश्चेतना भितर ही पड़े रहि थांते। से जेहेतु चाहुचंती आमे निश्चेतना भितर चेतना को आसुछे ओ आपनार सत्तारे अवस्थित रहिबा पई प्रत्येक पदार्थ को प्रत्येक सेही पदार्थ जड़ पदार्थ हे पारे ताको समर्थ करूछंती। खाली तो समर्थ करूनाहांती ताको बाध्य मध्य करूछंती। नेक्स्ट अष्टम वाक्य को आसीबा इट इज द रीजन ऑफ दैट क्लिंगिंग टू एक्जिस्टेंस that overmastering will to be it is the reason of that clinging to existence that overmastering will to be translated vitally as the instinct of a self preservation physically as the imperishability of matter mentally as the sense of immortality which attends the formed existence through all its phases of self-development, and of which even the occasional impulse of self-destruction is only a reverse form, an attraction to other state of being, and a consequent recoil from present state of being. गोटे बहुत बड़ वाक्य गोटे वाक्य एते बड़ तार अनुवादरा पढुची तापर ताको टिके छोटो करिकी आमे आलोचना को आसीबा। इट इज द रीजन ऑफ दैट क्लिंगिंग टू एक्जिस्टेंस क्लिंगिंग कथा आमे आगर पढिचे श्रीपति भाई भी हमको सुंदर भाव बुझेइचंती जे जेमति संयुक्त होई रहइबा आमे छुआटे हमको भिडिकी धरिची मानकड़ छुआटी क्लिंग करूची ता मदर सहित जाबुडी गिरी धरि गिरी से रहिचे सेही बळी एही आनंद हेतु ही सकल वस्तु आपनार सत्ता सहित संयुक्त होई रहिचंती। एही कारण रही एही आनंद हेतु ही एही कारण माने एही आनंदर कारण रही सकल वस्तु जेते सबु वस्तु रहिछि आपनार सत्ता सहित संयुक्त होई रहिचंती। ट्रांसलेटेड vitally as the instinct of self preservation एहारी हेतु ही अपना सत्ता मध्य रे बंची रहिबार इच्छा अपनार अदम्यतारे अन्य सकल इच्छा को अतिक्रम करि जाउछि। फिजिकली as the imperishability of matter, mentally as the sense of immortality which attends the formed existence through all its phases of self development यह ही प्राणी मध्य आत्म संरक्षण मूल प्रवृत्ति रूपे आविर्भूत होईछि। भौतिक विश्व स्तर रे जड़र अक्षयता रूपे प्रतिपादित होईछि। मन स्तर रे अमरत्वर भावना को जागृत करुछि। आत्म परिणामर जावतीय पर्याय रे रूपायित सकल सत्ता सहित एही अमरत्वर भावना अविच्छेद्य भावे जड़ित होई रहिछि।
एपरिकी आपणार अस्तित्व को विलुप्त करिदेबार सामयिक हठात प्रवृत्तिटिरे मध्य सेही अमरत्व वासना केवल एक विपरीत रूप से विद्यमान रही कारण सेही क्षेत्र रे मध्य प्राणी कदापि सत्तार संपूर्ण विलुप्ति कामना करूनाही केवल अन्य एक सत्तार आकर्षण रही बोली से ताहार वर्तमान सत्ताटी प्रति बीतश्रद्ध होई पड़ुछि एटा को टिके छोटिया छोटिया करके आमे पढ़िबा तापर बोधगम्य होई जिवो we find that everything in the universe wants to cling to its existence ब्रह्मांड रे जहा सब अछि ताहा एही अस्तित्व रे लागि रहिबा को चाहूची तांकर अस्तित्व रे तांकर सेही एक्जिस्टेंस सहित लागि रहिबा को चाहूची कारण एक्जिस्टेंस सेही सत्ता सहित अस्तित्व कहले सत्ता सहित लागि रहिबा को चाहूची कारण आनंद कहीं से लगी रहिबा को चाहूची तार कारण हैला आनंद देयर इज ए डोमिनेटिंग विल टू एक्जिस्ट इन ऑल फॉर्म्स समस्त रूप रे विद्यमान रहिबा पई एक प्रभावशाली इच्छा शक्ति रहिछि हमें सबले सेल्फ प्रिजर्वेशन पई आत्म कोन कहबा आत्म संरक्षण रो प्रवृत्ति समस्तक भितर रहिछि ऑल लाइफ फॉर्म्स have the instinct of self preservation सबु जीवन जेते फॉर्म सबु अछि छोटो एककोशी प्राणी ठु आरंभ करिकी मनुष्य पर्यंत बहुकोशीय मनुष्य बा अन्य प्राणी मानक पर्यंत सबु गुले गोटे इंस्टिंक्ट रहिछि फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन समस्त रूप रे विद्यमान रहिबा पई एक प्रभावशाली इच्छा शक्ति रहिछि we find this quality in matter in its imperishability समस्त जीवकर आत्म संरक्षण प्रवृत्ति रहिछि आमे जड़ वस्तुर एही गुण को एहार अपरिवर्तनीयता देखो जड़ वस्तु मध्य देखंतु जड़ वस्तु भी चाहूची परिवर्तन न हेबा पई काहे कि जेमिति प्राणी चाहूची तार सेल्फ प्रिजर्वेशन सेमती जड़ वस्तु भी मैटर भी चाहूची तार सेल्फ प्रिजर्वेशन सी भी चाहूनी किछि परिवर्तन हेबा पई इट इज फाउंड इन मैन इन हिज सेंस ऑफ इमोर्टालिटी यह मनुष्यर अमरत्वर अर्थ रे देखिबा को मिलिता है दिस इंस्टिंक्ट इज फाउंड इन ऑल फेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ एक्जिस्टेंस विथ फॉर्म्स एही प्रवृत्ति रूप सहित अस्तित्वर आत्म विकासर समस्त पर्याय रे मिलिता है एपरिकी निज जीवन को शेष करिवार सामयिक प्रवृत्ति मध्य बंचिबार एही प्रवृत्तिर विपरीत रूप से कहउचंती सुइसाइड जेते बेले सुइसाइडल टेंडेंसी जेते भी आछि सामयिक प्रवृत्ति भी आछि जीवन त्याग कर देबा पई सेते बेले मध्य सेठी एही जिंस रहिछि एही प्रवृत्तिर रूप सहित अस्तित्वर जो संपर्क से ताहा सहित से अस्तित्वर कथा रही किंतु किभली भावे विपरीत रूपे रही यह होछि वर्तमान अवस्था अन्य अवस्था को आकर्षित करी पछको हटिबा बा संकुचित ए जो रिकॉइल कथा कहिसंती संकुचित हेबार परिणाम एवं शेषरे लास्ट सेंटेंस को आसीबा डिलाइट इज एक्जिस्टेंस Delight is existence. Delight is the secret of creation. Delight is the root of birth. Delight is the cause of remaining in existence. Delight is the end of birth and that into which creation ceases. From Ananda, says the Upanishad, all existences are born. By Ananda they remain in being and increase. To Ananda they depart. very सुंदर कंक्लूजन प्रथम पारारे प्रभु देइचंती डिलाइट इज एक्जिस्टेंस आनंद हेउची अस्तित्व सृष्टिर रहस्य डिलाइट इज द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन जन्मर मूल डिलाइट इज द रूट ऑफ बर्थ डिलाइट इज द कॉज ऑफ रिमेनिंग इन एक्जिस्टेंस अस्तित्व रे रहिबार कारण जन्मर शेष डिलाइट इज द एंड ऑफ बर्थ एवं एंड दैट इनटू व्हिच क्रिएशन सीजेस जन्मर शेष
एवं आनंद मध्य सृष्टि बंद हो जाए। फ्रॉम आनंद उपनिषद से तैतरीय उपनिषद गला 11 चैप्टर आम जोटारू आरंभ करथिले प्रभुंकर से उपस्थापना से जदि चली जावा सेठीर गोटे सेंटेंस all existences are born by ananda, they remain in being and increase, and to ananda they depart. आनंद द्वारा से माने आनंद ही समस्त प्राणी जन्म हुंती, आनंद द्वारा से माने विद्यमान रहंती एवं वृद्धि पाती एवं शेषरे से आनंद को फेरी जाती। वंदे मातरम। आजिर आलोचना को महाप्रभु को पदरे निवेदन करी आलोचना को बंद करिबा एवं माँ आमको एभली भाव सहायता हुंतु जेभली अधिकरु अधिक यही रचना को आम हृदयंगम करि परिबा। वंदे मातरम।